Madam Dola Sen you had permitted her to speak in 0 hour about the change of the name from Raj Bhavan to Lok Bhavan. But she used this opportunity to express here in the House about the issue related to Manrega and other issues. I would like to be very clear that because it does not relate to the subject, it should be deleted and it should be not brought on the record. And the only issue related to Lok Bhavan should be admitted. Yes, I already said anything deviated from the subject will not go on records. Sri Kesaridev Singh Jalaji. बैठ जाइए. No, you go ahead. No, you address to the chair. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसका मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, आज मेरा मुद्दा महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह ऑफ नवानगर को भारत रत्न देने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं। महोदय, इस देश No, you sit down. I will give you. इस देश No, के you don't आजादी के disturb समय others. You please sit down. You please sit down. 565 से ज्यादा रजवाड़े इस देश के अंदर देशी रजवाड़े कार्यरत है। No. देश को आजादी के कार्यक्रम में आगे बढ़े You don't disturb others. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह प्रधान थे, उनको जवाबदारी दी गई कि रजवाड़ों को इकट्ठा करने का। 565 से ज्यादा रजवाड़ों में से गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत के अंदर 217 जितने रजवाड़े। I have also not said anything. 1 minute. I have also not said anything. I have said when whatever she has said about the subject will go on record. Whatever she has deviated from the subject will not go on record. That is the ruling. Yes. सर मेरा आप बोलो, आपको तो बोलने इन सबको इकट्ठित करने के लिए साहब सरदार पटेल साहब ने जामनगर के महाराजा 1 minute, leader of the opposition. She has not spoken any unparliamentary word. One thing, everything is connected with the subject, and that subject mostly examined in your office. Okay. After that only clearance. Okay. She has spoken. So that's what I have told. What you are telling, I have also told the same thing. That's why whatever is connected with the subject will go on record. Leader of the house can't interfere and say everything is unparliamentary. No. You delete. I have not said. I have not said anything. Leader is telling. He has also not said anything like that. He's a He has also bulldozing. not said anything like that. No, He also said that, leader is bulldozing, sir. Sir. And He has also not said anything like unparliamentary word. He has you not said don't anything. want to run according to the parliamentary democracy? Yeah, we are doing it. What I have said. Keep on this. What I have said. All the records keep everybody has not to a stick to single the word subject. should be removed. Everybody should stick to the subject. सर पहले से चालू करें। You please. Honorable leader of the house. Sir, I need your protection, sir. I have never bulldozed. I have only said that whatever is related to the subject should be admitted, and whatever is not related to the subject, you may please examine it. Yes, nothing will go on. No, I am coming to you. I am coming to you. Please address. सर पहले से चालू करें। सर इन 217 से ज्यादा रजवाड़ों को सौराष्ट्र में एकत्रित करने का काम सरदार पटेल साहब ने जाम साहब को दिया था, और ये अगत्य का प्रश्न उन्होंने निष्ठावान और राजधर्म के माध्यम से उन्होंने सॉल्व किया। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि एक युवा अवस्था में उन्होंने आर्मी ज्वाइन करके अफगानिस्तान के अंदर अपना फर्ज निभाया। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने
एलाइड फोर्सेस के वॉर कैबिनेट में किया। चेंबर ऑफ प्रिंसेस जो रजवाड़ों का संगठन आज़ादी के पहले का था, उसका चांसलर के माध्यम से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। सौराष्ट्र के वो राज प्रमुख भी 1956 तक रहे। महोदय, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर युद्ध के दौरान हजारों की संख्या में जब पोलैंड के अंदर रेफ्यूजीज, महिलाओं और बच्चे जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं थे, इस प्रकार की जब परिस्थिति खड़ी हुई तो जाम साहब ने उनको जामनगर बुला के बालाचड़ी में अपने खुद के निवास स्थान के अंदर उनको रहने का शरण भी दिया, साथ में शिक्षा और आरोग्य भी उनको प्राप्त करवाया। ये मानवीय भाव को देख के पोलिश पार्लियामेंट ने 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया हाउस के अंदर उनको सम्मान करते हुए, और एक स्क्वायर महत्व जो चौराया है वॉर्सो के अंदर, उसको गुड महाराजा स्क्वायर के नाम से उनको घोषित किया। पिछले महीने ही महोदय मोशव नेवातिम करके विस्तार है इजराइल के अंदर, उन्होंने भी एक स्टैच्यू के माध्यम से उनका सम्मान किया। महोदय, आजादी के बाद आस्था और श्रद्धा का महत्वपूर्ण केंद्र सोमनाथ मंदिर में जब सरदार पटेल और के.एम. मुंशी के साथ ट्रस्ट में बैठ के उस पूरे मंदिर का निर्माण का कार्य भी जाम साहब दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से हुआ। इतने सारे कार्य जो उनके लाइफ में हुए हैं, मैं Dr. Dinesh Sharma ji, I am calling you. I will give you time. Wait. सम्मानित सभापति Dr. Dinesh Sharma ji, सम्मानित सभापति महोदय, सदियों तक भारत ने विदेशी आक्रमणकारियों ने क्रूर शासन के तहत पीड़ा झेली है, जिन्होंने इसकी संपत्ति लूटी, समृद्धि लूटी और इसकी आत्मा कुचली गई। मंदिरों को नष्ट किया गया, संस्कृति को दबाया गया और हमारे लोगों पर अकल्पनीय अत्याचार किए गए। हमारी संस्कृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आज मैं आपके सामने दिल्ली, हमारी राजधानी शहर के ताने बाने में गहराई से गुथी हुई एक बात बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सड़कों, हमारी इमारतों, हमारे सार्वजनिक स्थानों को सुशोभित करने वाले नाम, फिर जब हम दिल्ली की सड़क हलचल भरी सड़कों पर चलते हैं तो अक्सर एक परेशान करने वाला सच हमारे सामने आता है। इनमें से कई नाम अधीनता के अतीत की गूंज है, विदेशी आक्रांता का जश्न मनाते हैं, जिन्होंने हमारी पवित्र भूमि पर आक्रमण किया और विदेशी शक्तियों के रूप में हम पर शासन किया। यह केवल चूक नहीं है, यह एक औपनिवेशिक मानसिकता की एक बची हुई छाया है, जिसे कुछ लोग गुलामी की मानसिकता कह सकते हैं। मान्यवर, सदियों से भारत की पवित्र भूमि ने साम्राज्यों के उतार चढ़ाव देखे हैं। कई विदेशी आक्रांता आए और अपनी छाप छोड़ी, लेकिन आज का भारत संप्रभु आत्मसम्मानित राष्ट्र है, जो अनगिनत नायकों के बलिदानों पर बना है, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने हमारी विरासत और मंदिरों को लूटा, नष्ट किया और हमारे पूर्वजों पर अमानवीय अत्याचार किए, हमारी सभ्यता को मिटाने की अनवरत कोशिश की। दिल्ली की सड़कों पर, तमाम जगहों पर मुगल सम्राटों और ब्रिटिश वायसराय के नाम पर ये सड़कों के नाम है। ये नाम, जबकि निसंदेह हमारी ऐतिहासिक आख्यान का हिस्सा है। स्वतंत्रता के बाद मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सभी समुदायों के धार्मिक गुरुओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्तों के सर्वोच्च बलिदान का अपमान किया और आक्रमणकारी विदेशी आक्रांताओं को महत्व दिया, और इसके बजाय दिल्ली की सभी गलियों, कॉलोनियों, सड़कों, पार्कों और उद्यानों का नाम आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए ताकि उनका महिमा मंडन किया जा सके। मान्यवर, ये भारत एक संपूर्ण भारत है। आप चारों तरफ देखो, कहीं अकबर रोड, कहीं शाहजहां रोड, कहीं हुमायूं रोड, कहीं लोधी रोड, कहीं मिंटो रोड, कहीं मिंटो ब्रिज, कहीं कनॉट प्लेस। अरे ये कौन है? ये मिंटो अभी ब्रिटिश वायसराय के नाम पर है। ये लोधी जो सल्तनत के अंतिम राजवंश है। ये नजफ खान रोड, ये मुगल सम्राट का एक कमांडर था। ये चेम्स रोड, आज खुदीराम बोस का जन्म जयंती है। आप जानते हो, ये चेम्स रोड, हेली रोड, दिल्ली में चेम्स रोड के नाम पर जो सड़क है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये भारत का वायसराय
Please, all should be very particular to the subject only. Please stick yourself only to the subject. Sri Sandosh, I am coming. Sandosh Kumar, Sriman Sandosh Kumar, please. Thank you, sir. So we have approximately 50,000 colleges and 1,000 universities in our country. The All India Federation of Universities and College Teachers Organizations, it's an umbrella organization, has decided to organize a protest march on 9th of this month in Delhi, raising certain genuine demands and concerns of the teachers across the country. Sir, 3 lakh teaching posts are vacant in our universities and government colleges. Don't we have enough number of qualified teachers to fill up these vacancies? If the answer of the government is no, I have nothing to say. But we all know that we have n number of thousands of qualified graduates with whom we can fill up these vacancies. And I request through you, sir, to take urgent steps to fill up these vacancies. Second, sir, approximately 6.5 lakh teachers are on contract basis, ad hoc basis, guest lectures. They have no job security, no proper salary, no proper working conditions. This issue must be addressed. Thirdly, sir, the UGC regulations of 2024 and 2025, it's an insult to the teaching community.